हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 एसएस का सेमेस्टर 2 पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक का किया था और पार्ट 5 में हम लोग चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी पूरा कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज। आंसर आता है द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द माइनॉरिटीज आर the minorities are given the right to establish and manage educational institutions to preserve their culture, language, script, and religion. The state government shall give grants financial assistance to these situations without making discrimination. The state government shall pay adequate compensation while acquiring their property. सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है, गिव रीजन एम्प्लॉइंग चाइल्ड लेबर इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द राइट against exploitation to every citizen. Employment of the citizen is hazardous occupation was a form of exploitation. The Indian Constitution prohibits employment of children below the age of 14 years in the industries and other hazard occupation. The Prevention of Child Labour Act prohibits employment of children below the age of 14 years in order occupation as well, and therefore employing child labour is a punishable offence. ठीक है, सेकंड नंबर ओवर होता है। थर्ड नंबर आता है, गिव रीजन वन कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक प्रोटेक्शन। आंसर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आंसर आता है the fundamental rights are the right guaranteed by the Constitution and therefore inviolable. The Supreme Court and the High Court have been given right jurisdiction to uphold the right of the citizen. Therefore, one can go to the court of law to seek protection against the violation of the fundamental rights. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है, गिव रीजन द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर है द राइट ऑफ सिटीजन बिकम meaningless unless protection is provided against their violation, and the right to constitutional remedies is the means by which the citizen can seek protection of their fundamental rights, and the Supreme Court and the High Court protect the fundamental rights of the citizen. Therefore, Dr. Baba Saheb Ambedkar has said that the right to constitutional remedies is the soul of the constitution. And फिफ्थ नंबर आता है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, स्टेट देयर इंपॉर्टेंस। आंसर आता है fundamental rights are those human rights which are recognized and guaranteed by state, and these are incorporated in the constitution and enforced by the judiciary. Second point, fundamental rights are essential for the development of personality of every individual. Third point, these enable every individual to live a life of self-respect and dignity. Fourth point, fundamental rights are the foundation of democracy. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई रॉक्स। आंसर है a composite matter made up of one or more mineral is called as rocks, and rocks can be hard as well as soft. They can be porous or non-porous. They can be light or heavy in weight. These types of rocks are formed due to the different process, and rocks can be divided into 3 categories on the basis of their formation. फर्स्ट है आपका इग्निशियस रॉक्स, सेकंड है स्ट्रैटिफाइड रॉक्स, एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स के 3 प्रकार होते हैं यहाँ पे, इग्निशियस, स्ट्रैटिफाइड एंड मेटामॉर्फिक। इग्निशियस के भी टू टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव आपका आता है प्लूटोनिक और दूसरा आता है आपका हैबिसियल। एक्सट्रूसिव का आएगा वॉल्केनिक। स्ट्रैटिफाइड के 3 प्रकार, स्ट्रैटिफाइड के भी 3 टाइप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, केमिकली और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के भी 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है एरिनेसियस, दूसरा होता है एर्गिलेसियस और तीसरा होता है कोलोमेरेट। और देन केमिकली फॉर्म्ड के बाद आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के भी 2 टाइप्स होते हैं, कैलकेरियस और कार्बोनेसियस। मेटामॉर्फिक में भी 2 टाइप्स आते हैं, कॉन्टैक्ट और रीजनल।
सबसे पहले अगर हम बात करें इग्निशियस रॉक्स की, तो द इंटेंस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स एंड द इंटीरियर ऑफ अर्थ रिमेन्स वेरी हॉट ड्यू टू दिस हीट, so the matter here is in semi liquid state and which is called as magma. Eventually, when this magma cools down, rocks are formed at many places in Rajasthan, Madhya Pradesh and southern peninsula in India. Such rocks have formed, and granite is well known as the example of the plutonic. देन अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड रॉक्स की, तो स्ट्रैटिफाइड रॉक्स इग्निशियस रॉक्स डिसइंटेग्रेट ड्यू टू द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ द वाटर एंड अदर फोर्सेस एंड दीज आर आल्सो नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द ब्रोकन रॉक्स मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली डिपोजिटेड इन वाटर एंड दे फॉर्म लेयर्स ऑफ underlying rocks which were formed initially are laying at the bottom and eventually rocks are formed with different layers and these are called stratified rocks. Example है gypsum, limestone and coal. देन आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, तो इन सर्टेन पेक्यूलर कंडीशन दी फॉर्म कंपोजिशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स आर टोटली चेंज्ड ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रॉक्स स्ट्रेटा. द इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू अ टोटली न्यू फॉर्म एंड दीज न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स आर नॉट एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है क्लासिफाई मिनरल्स. आंसर है जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज आर फॉलो. फर्स्ट आपका मेटालिक मिनरल्स, जिसमें आता है प्रीसियस मेटालिक मिनरल्स, जिसमें आता है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम एक्सेट्रा. सेकंड आता है आपका लाइटर मेटालिक मिनरल, जिसमें आता है आपका मैग्नीशियम, बॉक्साइट और टिटेनियम. थर्ड आता है मिनरल्स ऑफ जनरल यूज, जो आता है आपका आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टीन, निकल, ये सब आपके मिनरल ऑफ जनरल यूज के आते हैं. देन लास्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, वो आता है आपका मिनरल्स यूज्ड एज अलॉयज, जिसमें आता है क्रोमिनियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन और वैनेडियम. ठीक है, ऐसे सब कुछ मिनरल यूज्ड एज अलॉयज में आता है. नेक्स्ट आता है नॉन मेटेलिक मिनरल, जिसमें आते हैं लैमस्टोन, चॉक, एब्स्टस, मीका, फ्लूरोस्फर, जिप्सम, सल्फर, डायमंड्स एक्सेट्रा. एंड थर्ड आता है एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें आता है कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थ्रोनियम. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आता है फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट सिलेबस का. क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट नर्मदा बेसिन. तो आंसर है नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स नियर अमरकंटक, फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली इन मध्य प्रदेश एंड मीट्स द अराबियन सी ऑफ अबाउट 1312 किलोमीटर अबाउट. The sea water can enter up to a long distance in her wide mouth. And second hand Narmada basin is restricted to Gujarat and Madhya Pradesh. Third आता है third point, Narmada flows through the marble rocks at Bheda Ghat located near Jabalpur. Dhuandhar falls are formed due to the steep slope of the Narmada. And fourth point आता है Narmada has many tributaries, none of which is longer than 200 km and most of the rivers meet Narmada at right angle. Fifth point आता है Narmada and her tributaries have formed rectangular drainage pattern. सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कृष्णा एंड कावेरी बेसिन. सबसे पहले हम लोग कृष्णा बेसिन की बात करेंगे, देन हम लोग कावेरी बेसिन की बात करेंगे. सबसे पहले कृष्णा बेसिन की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है रिवर कृष्णा ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट एंड पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मीट्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल. सेकंड पॉइंट आता है इट्स लेंथ इज अबाउट 1400 किलोमीटर. और थर्ड पॉइंट आता है कोयना, घाट प्रभा, भीमा, टंगभद्र, मूसी एक्सेट्रा आर हर ट्रिब्यूटेरियस. फोर्थ पॉइंट आता है हेट बेसिन इज स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट अब हम आता है कावेरी बेसिन के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी रेंज इन कर्नाटका इन वेस्टर्न घाट्स एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल नियर ओल्ड कावेरी पट्टनम साउथ ऑफ कंडलूर इन तमिलनाडु. सेकंड पॉइंट आता है इट इज़ अबाउट 760 किलोमीटर लॉन्ग. थर्ड पॉइंट आता है अमरावती, भवानी, हेमावती, कालिनी एक्सेट्रा एंड हर मेजर ट्रिब्यूटेरियस. एंड फोर्थ पॉइंट आता है आपका हर बेसिन एरिया स्प्रेड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन.
आंसर है रेमेडीज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन का आता है। फर्स्ट नंबर है ऑब्जर्व द रूल्स मेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन स्ट्रिक्टली। सेकंड पॉइंट आता है इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट फॉर प्योरीफाइंग द वाटर बाय नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी फॉर्म्ड सो दैट द इंडस्ट्रियल यूनिट्स वुड नॉट एम्प्टी देयर इन्फ्लुएंट वाटर इनटू द रिवर्स। फोर्थ पॉइंट आता है इंडस्ट्रीज शुड प्योरीफाई द इन्फ्लुएंट water with due treatment before releasing it in the river so that the harmful element of destroyed from the chemical waters। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है स्टेट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर। आंसर है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर का फर्स्ट पॉइंट आता है रिवर वाटर इज नेचुरल रिसोर्स। सेकंड पॉइंट आता है रिवर वाटर हैज फुलफिल द इकोनॉमिक नेसेसिटीज ऑफ मैन। थर्ड पॉइंट आता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज मेनली बिकॉज ऑफ रिवर्स। फोर्थ पॉइंट आता है एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरिश्ड एंड डेवलप्ड अलोंग रिवर बैंक्स। फिफ्थ पॉइंट आता है मेनी लार्ज सिटीज इन इंडिया हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक। एग्जाम्पल में आता है दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत और भरूच। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ लेक्स। आंसर है यूटिलिटी ऑफ लेक्स। फर्स्ट पॉइंट आता है सम ऑफ द लेक्स इन इंडिया आर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन फॉर मेनी रिवर्स। एग्जाम्पल में है नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक लेक। सेकंड पॉइंट आता है वाटर ऑफ द लेक इज हैवी रेनफॉल रीजन कैन बी कंजर्व्ड एंड मे बी यूज्ड इन इरिगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूसेस एंड फॉर फिशरी। थर्ड पॉइंट आता है लेक वाटर्स आर यूजफुल एट द टाइम ऑफ द ड्रॉट। फोर्थ पॉइंट आता है वाटर ऑफ द लेक्स built through large dams across river is useful in irrigation, production of hydroelectricity and for fishery. Thus lakes are useful in many ways। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 में से आता है क्वेश्चन नंबर 1 फॉर विच रीजन डज गुजरात गेट लेस रेन। आंसर है फर्स्ट पॉइंट आता है वन ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड ब्लोइंग फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रिंग रेन टू गुजरात एंड दीज विंड्स आर वीक एंड ऑल्सो कंटेन लेस ह्यूमिडिटी। सेकेंड पॉइंट आता है इन दिस पोर्ट ऑफ गुजरात देर आर नो हाई माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट सो देर आर लीस्ट चांसेस फॉर कंडेंसेशन एंड दैट इज वाई गुजरात गेट्स लेस रेन। सेकेंड नंबर आता है गिव जियोग्राफिकल रीजन्स ड्यूरिंग विंटर अ कोल्ड वेव प्रिवेल्स ओवर गुजरात एंड राजस्थान। आंसर है स्नोफॉल समटाइम्स ऑकर इन हिमालयस एंड एट दैट टाइम द विंड डायरेक्शन ओवर इंडिया इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। Second point, so the cold and heavy air from Himalaya rushes down to south. Under its influences, a cold wave prevails over Rajasthan and Gujarat, and the temperature suddenly falls down due to the frost in some area. Crops like cotton is damaged. Third number, explain windward slope of mountains। Answer है first point, the mountain slope which lies at right angle to the prevailing winds and obstruct them is known as windward slope। सेकेंड पॉइंट आता है द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट विच प्रिवेंट द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड एंड द साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालयास आर विंडवर्ड स्लोप्स इन इंडिया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डज द कोरोमंडल कोस्ट गेट इट्स रेन ड्यूरिंग विंटर। तो आंसर है द नॉर्थ ईस्ट विंड ब्लो ओवर इंडिया ड्यूरिंग विंटर एंड दिस विंडर ब्लोज फ्रॉम द लैंड ओवर मोस्ट ऑफ द लैंड मास एंड दीज आर जनरली मोस्टली दे डू नॉट ब्रिंग एनी रेन। सेकेंड पॉइंट आता है एज द नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स ब्लोइंग अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट कम फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल दे हैपन टू कैरी much moisture so they give much rain along Coromandel coast and thus Coromandel coast get its rain during winter। लास्ट पॉइंट आता है लास्ट नंबर आता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 ड्रो अ डायग्राम ऑफ द अर्थ एंड शो द फॉलोइंग प्लेसेस। इसमें आता है फर्स्ट है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शो करना है, सेकंड आपको शो करना है इक्वेटर और थर्ड शो करना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरह से आपको एक अर्थ बनाना है जिसमें सबसे पहले आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करना है, देन आपको इक्वेटर आएगा, ठीक है, एकदम मिडल में इक्वेटर आता है और थर्ड में आपका आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीन प्लेसेस आपको इस अर्थ के ऊपर ड्रॉ करना है। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन इक्वेटर, देन आएगा कैप्रिकॉर्न।
तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स सेक्शन बी ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग सेक्शन सी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका एसएस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।